Good morning, students. In last lecture of theory of machine, we covered some topics of the unit number 1. Firstly, we discussed about what is theory of machine. After that, we studied what is kinematics of machines, what is dynamics of machine, what is kinetics, and what is statics. After that, we will discuss about what is kinematic link or element, and type of body or type of links, rigid links or and resistant links. What is the difference between rigid link and resistant link? After that, we will discuss about what is types of classification of the links: rigid link, flexible link, fluid links. After that, we will discuss about difference between these machines and structures, kinematic pairs, type of constant motions, completely constant motion, incompletely constant motion, successfully constant motion. After that, classification of kinematic pairs according to the type of relative motion between the links. First classification is sliding pair. Second is turning pair. Rolling pair, screw pair, and spherical pair. And according to the type of contact between the elements, lower pair and higher pair. And classification of the kinematic pairs according to the type of closure, self-forced pair and force-forced pair. Now the next topic is kinematic chain. So what is kinematic chain? When the kinematic pairs are coupled in such a way that the last link is joined to the first link to transmit definite motion, that is completely or successfully constant motion, it is called a kinematic chain. In other words, a kinematic chain may be classified as combination of kinematic pairs joined in such a way that each link forms a part of two pairs and the relative motion between the links or elements is completely or successfully constrained. Okay, when the kinematic pairs are coupled in such a way that जब kinematic pair को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहला लिंक लास्ट लिंक के साथ जोड़ दिया जाए और जो मोशन हो लिंक्स के बीच में वो या तो completely constant मोशन हो या सक्सेसफुली constant मोशन हो, इस कंडीशन में ही उस काइनेमेटिक पेयर के कॉम्बिनेशंस को, ठीक है, हम काइनेमेटिक चेन कहते हैं. काइनेमेटिक चेन, सिंपल काइनेमेटिक चेन आपकी होती है 4 बार चेन. अगर हम दो लिंक लें, स्ट्रेट रॉड्स, तो उससे हम फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. 3 लिंक्स अगर हम लेते हैं, 3 लिंक, इस केस में हम कनेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन मोशन नहीं होगा 3 लिंक्स में. तो सबसे सिंपल जो काइनेमेटिक चेन है आपकी,
वो 4 बार लिंक है, 4 बार चेन है। इसमें 4 लिंक्स होते हैं और फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक को ऐड हम ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद जो मोशन होता है इनके बीच में वो कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो 4 बार चेन बेसिक चेन है। यहाँ पर काइनेमेटिक चेन के पेयर्स में, नंबर ऑफ पेयर्स में और लिंक्स में हम लोग एक रिलेशन है यहाँ पर, इसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं। इफ ईच लिंक इज एज्यूम्ड टू फॉर्म 2 पेयर्स with 2 adjacent links, then the relation between the number of pairs forming a kinematic chain and the number of links L may be expressed in the form of an equation L is equal to 2p minus 4। हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। एज्यूम करते हैं एक सिंपल 4 बार चेन, फर्स्ट लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक एंड फोर्थ लिंक। ओके, पेयर कितने हैं यहाँ पर? फर्स्ट एंड सेकेंड लिंक का फर्स्ट पेयर P1, सेकेंड पेयर P2 जो लिंक 2 और 3 के बीच में है, लिंक 3 और 4 के बीच में जो पेयर है उसे थर्ड पेयर, और ये यहाँ पर फोर्थ पेयर है। तो सिंपल 4 बार चेन में जो नंबर ऑफ पेयर्स हो गए हैं यहाँ पर वो 4 हैं, नंबर ऑफ लिंक्स हैं वो भी आपके पास 4 हैं। अगर इसमें हम देखें इक्वेशन जो हमने ड्राइव किया, L इज इक्वल टू 2p माइनस 4, इस इक्वेशन से हम देखें नंबर ऑफ पेयर्स लिंक्स 4, नंबर ऑफ पेयर्स 4 माइनस 4, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ओके, L is equal to the 2p minus 4. Another relation between the number of links and the number of joints which constitute a kinematic chain is given by the expression J is equal to 3 by 2 into L minus 2. Number of joints और नंबर ऑफ लिंक्स के बीच में जो रिलेशन है वो होता है J is equal to number of joint is equal to the 3 by 2 number of links minus 2. Okay, now टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन ए चेन। अब ज्वाइंट की हम बात कर रहे हैं तो कितने तरह के ज्वाइंट्स होते हैं इस चेन्स में, काइनेमेटिक चेन्स में? बाइनरी ज्वाइंट, फर्स्ट इज बाइनरी ज्वाइंट। व्हेन 2 links are joined at the same connection, the joint is known as binary joint. Okay, see, in a 4 bar chain, यहाँ पर 2 लिंक कनेक्ट हैं एक पे पॉइंट पर, तो ये हमारा जो जॉइंट है ये बाइनरी जॉइंट कहलाएगा यहाँ पर। ओके, सेकंड टर्नरी जॉइंट। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट E और C पर जो जॉइंट है वो टर्नरी जॉइंट है। पॉइंट A और एंड B और D पॉइंट्स पर जो जॉइंट्स हैं ये बाइनरी जॉइंट है हमारे। ठीक है, पॉइंट E पर लिंक 4, 5 एंड 6 कनेक्ट हैं, 3 लिंक्स कनेक्ट हैं। When 3 links are joined at same connection, the joint is known as ternary joint. और पॉइंट C पर भी यहाँ पर 3 लिंक्स कनेक्ट हैं, 2, 3 एंड 5, तो ये आपके कहलाएंगे टर्नरी जॉइंट्स E और C पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाटरनरी जॉइंट्स की। When 4 links are joined at same connection, the joint is called the quaternary joint.
इट इज इक्वलेंट टू द 3 बाइनरी ज्वाइंट, 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होते हैं ये। यहाँ पर पॉइंट जी, पॉइंट सी और पॉइंट एफ पर आप देखें, यहाँ पर 7, 8, 10 और 11 लिंक्स आपके जी पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, 4 लिंक्स कनेक्टेड हैं एक पॉइंट पर, और सिमिलरली पॉइंट एफ पर 6, 8 और 9 है, ये टर्नरी ज्वाइंट है आपका। जी पॉइंट क्वार्टनरी ज्वाइंट है। सी पॉइंट पर 4 लिंक हैं, 2, 3, 9 एंड 10, ये आपका क्वार्टनरी ज्वाइंट है। तो पॉइंट जी और सी यहाँ पर क्वार्टनरी ज्वाइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी, एफ और ई यहाँ पर टर्नरी ज्वाइंट्स हैं, और पॉइंट डी यहाँ पर आपका बाइनरी ज्वाइंट है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम. What is degree of freedom? The degree of freedom of a mechanical system is the number of independent variables required to define the position or motion of the system. Okay? Degree of freedom refers to the number of basic ways a rigid object can move through 3D space. Okay? Again, the degree of freedom of a mechanical system is the number of independent variables required to define the position or motion of the system. Okay? Degree of freedom refer to the number of basic ways a rigid body can move through 3D space. There are 6 total degree of freedoms. 3 correspond to translation movement around the x, y and z axis, and 3 translation movements around the x, y, z axis. If we have a component or a body in a 3-dimensional space, x, y and z, in that case, let's suppose this is a body. This body can move along the x-axis. This body can move in y-axis, or it can be moved in z-axis. This body can rotate along the x-axis. This body may rotate about y-axis, or it can be rotated about the z-axis. So the degree of freedom of this body can be equal to this 6. It is possible to determine the number of degree of freedom of a mechanism directly from the number of links and the number and type of joints which it includes. We can calculate the degree of freedom. Okay. Let us consider a plane mechanism with L number of links. एक mechanism हम ले लेते हैं जिसमें number of links जो हैं वो L है. Okay. Since in a mechanism one of the link is to be fixed, now the difference between the kinematic chain and mechanism is when a link in a kinematic chain is fixed, the chain kinematic chain is defined as the mechanism. Again, if a link in a kinematic chain is fixed, in that case kinematic chain is defined as mechanism. Okay, so in a mechanism one link is fixed, therefore the number of movable links will be L minus 1, and thus the total number of degree of freedom will be 3 into L minus 1.
3.3 axis xyz. So the total number of degree of freedom of for this mechanism for a planar mechanism will be 3 into L minus 1 for a planar mechanism before they are connected to any other link. In general, a mechanism with L number of links connected by J number of binary joins or lower pairs and H number of higher pairs. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती है आपकी एच हायर पेयर की और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है लोअर पेयर की. when the number of degree of when the number of degrees of freedom of a mechanism is given by n is equal to the 3 into L minus 1 minus 2j minus h. Okay, this equation is called Kurzbach criterion for the movability of a mechanism having plane motion. तो किसी भी mechanism में जिसमें plane motion है तो वहाँ पर movability और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम above इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं जो है n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में L माइनस 1 माइनस 2j माइनस h. if there are no if there are 2 degree of freedom pairs, okay, 2 degree of freedom pair and there is no higher pair, if there are no higher pair या no 2 degree of freedom, अगर कोई higher pair ना हो किसी plane mechanism में then h is equal to 0. so substituting this h is equal to 0 in above equation, so the equation can be reduced as n is equal to the 3l minus 1 minus 2j. Okay, now the Grubler's criteria for a planar mechanism to determining the degree of freedom, or we can say what is Grubler criteria for the plane mechanism. Grubler criteria applies to a mechanism with one single degree of freedom joins. There are overall movability of the mechanism is unity. Okay, substituting degree of freedom is equal to 1 and higher pair is equal to 0 in Kurzbach equation we have 3l minus 2j minus 4 is equal to the 0. From this equation is known as Grubler criterion for planar mechanisms with constant motion. Okay, लास्ट में ये इक्वेशन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं. नंबर ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू 3/2 इंटू एल नंबर ऑफ लिंक्स माइनस 2. अब इस मैकेनिज्म के लिए हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है. चलिए इसको अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं हम लोग. Formula for degree of freedom is n is equal to the 3l minus 1 minus 2j minus h. Equations for determining the degree of freedom is 3l minus 1 minus 2j minus h, where n is the degree of freedom of mechanism, L is the number of links, in mechanism, J is the number of binary joints or number of joints, H is the number of higher pairs.
Number of higher pair means pairs having line or point contacts. Now, in this mechanism, planar mechanism, first of all, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट करने होंगे. फिक्स लिंक को हम लोग जितने भी होते हैं सेम लिंक एक ही काउंट करते हैं. यहाँ पर ये 1 और ये भी 1. फर्स्ट लिंक फिक्स लिंक. सेकेंड लिंक इज दिस 2. थर्ड लिंक इज दिस थर्ड. ये यहाँ पे इंजॉइंट है लिंक 2 और लिंक 3. फोर्थ लिंक इज दिस and fifth link is from point A to B is the link 2. Point B to C is link 5. D to E is link 4. E to F is 7. C to F 6. And from D to G is link 3. Okay. At this point, links are pin jointed. Okay. So total number of links are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this slider 8. Okay, total number of links in this planar mechanism is 8. Now number of joints, 1 and 2 is connected at the point A, 2 is 3 and connected at the point H, 4 and 5 is connected at I. This is the point G. So number of joints in this mechanism is point A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Total number of joint in this mechanism is 10. There is no higher pair in this planar mechanism. H is equal to 0. Now from the above equation, degree of freedom will be equal to the 3 into L minus 1 minus 2 into J minus H, or N is equal to the 8 minus 1 minus 2 into 10 minus 0, 3 into 7 minus 20 equal to the 1. So here degree of freedom for this planar mechanism is 1. Okay. Now take this diagram. Here in this mechanism, this is a single link and this is a single link. So first of all we will count for determining the degree of freedom. First of all, count the number of links in the planar mechanism. Here this is the link 1, link 2, link 3, 4, 5 and 6. So total number of links is 6. Total number of joints, joint 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total number of joint are 7. Here no higher pair is present in this planar mechanism. Now according to the
Now using the equation for degree of freedom, 3L minus 1 minus 2J minus H. So N is equal to the 3, 6 minus 1 minus 2 into 7 minus 0, or 3 into 5 minus 14, or degree of freedom for this planar mechanism will be equal to the 1. So the degree of freedom for this planar mechanism will be equal to the 1. Okay. Okay. Now we have to calculate the degree of freedom for this planar mechanism. What is the equation? Degree of freedom n is equal to the 3L minus 1 minus 2J minus H. Total number of links L will be equal to the, this is the link 1 which is fixed, this is the link 2, link 3, and this roller link 4. So in this planar mechanism total number of links are 4. Now come to the number of joints. This is the first joint between the link 1 and 2. This is the second joint between the link 2 and 3, and link 3 is connected with the lower roller at the link 3, at the joint 3. Okay, so here 3 joints are present, and a higher pair is also present in this mechanism. Roller connect with the link 1 with line contact. Here in this planar mechanism, link 4 is connected with the link 1 as with a line contact. So a higher pair is also present in this planar mechanism. Okay. Now the total degree of freedom of this planar mechanism will be 3, 4 minus 1 minus 2 into 3 minus 1. 3 into 3 minus 6 minus 1. 9 minus 6 minus 1. Degree of freedom for this planar mechanism is n is equal to 2. Okay, the degree of freedom of this planar mechanism will be 2. I hope you can calculate the degree of freedom of any planar mechanism by using this equation. Okay. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी तक। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को समझा कि जो थ्योरी ऑफ मशीन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। पहला है काइनेमैटिक्स, सेकंड है डायनामिक्स ऑफ मशीन। काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन में हम लोग बॉडी के
मैकेनिज़म्स में केवल लिंक्स के बीच के मोशन की स्टडी करते हैं, और डायनामिक्स ऑफ मशीन में बॉडी के फोर्सेस की स्टडी करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स का भी स्टडी करते हैं। डायनामिक्स ऑफ मशीन को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में जब लिंक मैकेनिज्म के रेस्ट में होते हैं और हम फोर्स एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे ब्रांच को थ्योरी ऑफ मशीन के हम स्टैटिक्स में डिवाइड करते हैं, डायनामिक्स ऑफ मशीन में सब डिवाइड करते हैं स्टैटिक्स में। और काइनेटिक्स जब लिंक के कंपोनेंट्स, मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स जो एलिमेंट्स हैं या उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो ऐसे एनालिसिस को काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी में हम लोगों ने डिफरेंस समझा। रिजिड बॉडी एक्चुअल में कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है, ओके। और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये है कि किसी भी फोर्स के अप्लाई करने पर बॉडी में प्रेजेंट किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो ज़ीरो होता है। मैंने इट मीन्स सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, तो कोई भी किसी भी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया जाए इसमें, ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इट मीन्स कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो बॉडी में, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। इन एक्चुअल रिजिड बॉडी प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हर एक बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके, अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते जाएं तो एक्चुअल में कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। तो रेजिस्टेंट बॉडी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी मशीन कंपोनेंट है या कोई भी आपका मशीन हम यूज़ करते हैं, तो मशीन का जो डिज़ाइन किया जाता है वो लिमिटेड फोर्सेस के लिए किया जाता है कि मैक्सिमम कितना फोर्स इसमें हम अप्लाई करेंगे, उसी कंसिडर करते हुए हम मशीन कंपोनेंट्स के मटेरियल को चूज़ करते हैं और उसकी डायमेंशंस को फिक्स करते हैं, ओके। तो जो बॉडी है, मैक्सिमम फोर्स जो लिमिटिंग फोर्स हम ले रहे हैं, उस फोर्स के अंदर अगर बॉडी एज ए रिजिड बॉडी बिहेव करती है, यानी कि उसमें जो डिफॉर्मेशंस हैं वो नहीं होते हैं, तो ऐसी बॉडी को हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। ये हमने स्टडी किया था। लिंक्स क्या होते हैं? काइनेमेटिक लिंक्स बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी काइनेमेटिक किसी मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म में बेसिक पार्ट मैकेनिज्म का जिसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो ऐसे पार्ट को हम लिंक या एलिमेंट कहते हैं, ओके, क्लियर। और जो लिंक्स होते हैं वो रिजिड लिंक हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक हो सकते हैं और फ्लूइड लिंक्स हो सकते हैं। तो जो आपका रिजिड लिंक है वो तो हमने डिस्कस किया। और सेकंड है फ्लेक्सिबल लिंक की अगर हम बात करें, तो जैसे बेल्ट, दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए बेल्ट यूज़ करें हम, तो बेल्ट जो अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो बेल्ट एक फ्लेक्सिबल लिंक की कैटेगरी में रखते हैं हम। फ्लूइड लिंक की कंडीशन अगर हम बात करें, तो एक मशीन में मैकेनिज्म में एक पार्ट को दूसरे पार्ट से फ्लूइड की हेल्प से जब कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पर कोई फिक्स लिंक नहीं है, कोई रिजिड लिंक नहीं है, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी एक लिंक की दूसरे लिंक से फ्लूइड के कांटेक्ट की वजह से होती है। तो ऐसे लिंकेज को, ऐसे लिंक्स को फ्लूइड लिंक की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ओके। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है थ्योरी ऑफ मशीन का।
ये चीज़ें अगर हमें क्लियर होंगी तो आगे आसानी होगी स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट में। बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया और आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं यूनिट 1 के। आप वहाँ पर इसे स्टडी भी कर सकते हैं इनकी डेफिनेशंस को। फिर फर्दर आता है काइनेमेटिक पेयर के बारे में हमने डिस्कशन किया। जब एक लिंक एक मैकेनिज्म में एक लिंक दूसरे लिंक से जब कनेक्ट होते हैं तो कनेक्शन होने के बाद उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अगर एक पार्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे या मोशन होगा, वो दूसरे पार्ट में दूसरे एलिमेंट को वो फोर्स और वो मोशन जो भी हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट लिंक को, वो उसे ट्रांसमिट करेगा। तो जो रिलेटिव मोशन हो अगर ऐसे लिंक्स के बीच में, वो कंस्टेंट हो या सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन हो, कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन हो या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन हो, तो हम ऐसे लिंक के जॉइंट को काइनेमेटिक पेयर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे हम लोग करते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, कि एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में किस तरह से मूव कर रहा है ना। ये से डिस्कस किया था हमने, मोशन कैसा है उसका। तो अगर दो लिंक्स के बीच में स्लाइडिंग मोशन हो, कि एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में स्लाइड करे, तो ऐसे लिंक को हम लोग कहते हैं, ऐसे काइनेमेटिक पेयर को हम कहते हैं स्लाइडिंग पेयर। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्लाइडिंग पेयर्स। और अगर एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में टर्न करे, तो ऐसे पेयर्स को हम लोग कहते हैं टर्निंग पेयर्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। ओके, स्लाइडिंग पेयर एंड टर्निंग पेयर। ओके, फर्दर इसके आगे अगर हम डिस्कस करें तो सेकेंड थिंग इज रोलिंग पेयर एंड स्क्रू पेयर। अगर एक लिंक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोल करता है, ओके, रोलिंग मीन्स लाइक दिस। इससे पहले मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देखिए, ये जो लिंक रोलर है, ओके, यहाँ पर ये रोलर लिंक 1 इस प्लेन पर रोल करेगा। ओके, तो लिंक 4 और लिंक 1 यहाँ पर रोलिंग पेयर बना रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रोलिंग पेयर। टर्निंग पेयर, बाकी की जितने भी जॉइंट्स हैं वो टर्निंग पेयर हैं, कि लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में जो मोशन होगा वो टर्न करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो टर्निंग पेयर हैं। लिंक 1 लिंक 2 के रिस्पेक्ट में भी टर्न करेगा, तो ये भी टर्निंग पेयर की कैटेगरी में आएगा। ओके, स्क्रू पेयर बेसिकली जैसे लीड स्क्रूज हम यूज़ करते हैं लेथ मशीन में, तो वहाँ पर एक स्क्रू पेयरिंग में बेसिकली थ्रेड्स जो कटिंग होते हैं हमारे, ठीक है, एक स्क्रू और नट, तो इस तरह का जो मोशन है यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग हेलिकल थ्रेड्स होते हैं। तो अगर मोशन होगा स्क्रू का यहाँ पर, तो ये रोटेट भी करेगा और लीनियर मोशन भी होगा। तो इस तरह के जो पेयर होते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रू पेयर। लास्ट हमने डिस्कस किया था मोशन में स्पेरिकल पेयर को। तो स्पेरिकल पेयर में किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है, ये फ्री होता है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं उसे हम स्पेरिकल पेयर में रखते हैं। जैसे कार का जो मिरर है, साइड मिरर्स होते हैं, उसमें बाइक के मिरर्स की बात करें तो वहाँ पर बाइक मिरर्स में आपके जो मिरर होता है वो स्पेरिकल पेयर कांटेक्ट होता है। और बॉल पेन में जो बीच में पेन में रोलर होता है वो भी स्पेरिकल पेयर होता है। इसी तरह फिर आगे हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, लोअर पेयर एंड हायर पेयर। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है जो डिस्कस कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, आगे इनका इम्पोर्टेंस है।
कि भाई स्लाइडिंग पेयर क्या है, टर्निंग पेयर क्या है। यहाँ बेसिक स्टडी हो रही है चीज़ों की। मैकेनिज़म्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं, और बट जो बेसिक उनका जो फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेकंड लास्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स। तो अगर दो काइनेमेटिक पेयर्स अगर काइनेमेटिक पेयर है तो और लिंक्स के बीच में जो पेयरिंग है वो सरफेस कांटेक्ट हो, यानी कि एक लिंक दूसरे के साथ उसका जो सरफेस है वो कांटेक्ट में हो, तो ऐसे लिंक्स को, ऐसे काइनेमेटिक पेयर को हम लोग लोअर पेयर बोलते हैं। और हायर पेयर में अगर हम डिस्कस करें तो हायर पेयरिंग में जो कांटेक्ट होता है दो लिंक्स के बीच में वो या तो लाइन कांटेक्ट हो या फिर पॉइंट कांटेक्ट हो। तो ऐसे काइनेमेटिक पेयर्स को हम हायर पेयर की कैटेगरी में रखते हैं। हायर पेयर के एग्जाम्पल्स में कैम फॉलोअर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैम और फॉलोअर, यहाँ देखिए, यहाँ पर सेकंड डायग्राम में जो कांटेक्ट है कैम और फॉलोअर के बीच में वो पॉइंट कांटेक्ट है। ओके, एक पॉइंट कांटेक्ट है इनके बीच में। तो इस तरह के पेयर्स को हम लोग हायर पेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फर्दर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ क्लोजर क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स में, तो सेल्फ क्लोज यानी कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर के साथ क्लोज्ड है। ओके। और दूसरा हम फोर्स क्लोज बोलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है, कैम फॉलोअर के इन साइड में यहाँ पर प्लेस्ड है, तो ये सेल्फ क्लोज्ड पेयर में कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर सेकेंड डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो पेयरिंग है वो ऊपर से या तो स्प्रिंग या फोर्स अप्लाई करेंगे फॉलोअर पर, तभी ये पेयर आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट पेयर मोशन होगा इनके बीच में। और यहाँ पर फोर्स्ड क्लोज पेयर आपका यहाँ पर आ रहा है कि एक बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों के बीच में कांटेक्ट डेवलप हुआ, कैम और फॉलोअर के बीच में यहाँ पर। फिर हमने काइनेमेटिक चेन के बारे में डिस्कस किया। काइनेमेटिक चेन क्या होते हैं? काइनेमेटिक पेयर्स को कपल किया जाए इस तरीके से कि फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक के साथ जोड़ दिया जाए और उनके बीच में जो मोशन हो या तो कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन हो या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को काइनेमेटिक पेयर के हम लोग काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास एक है कि नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू दी 2p-4 होते हैं, तभी इसे हम काइनेमेटिक चेन कहेंगे, है ना। यहाँ काइनेमेटिक चेन में जो ज्वाइंट्स हैं वो बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट और क्वाटरनरी ज्वाइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने डिस्कस किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ कर्ट्ज़बर्ग क्राइटेरियन फार्मूला है हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, n इज इक्वल टू दी 3 इंटू एल माइनस वन माइनस 2j माइनस एच। ओके। अगर इस इक्वेशन में हायर पेयर ज़ीरो रख दिए जाएँ तो इसी इक्वेशन को n इज इक्वल टू 3n एल माइनस वन माइनस 2j के फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी हायर पेयर मैकेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, प्लेनर मैकेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। ग्रबलर क्राइटेरिया में अगर किसी प्लेनर मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, हायर पेयर एब्सेंट हो, तो वहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ लिंक्स और जॉइंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रबलर क्राइटेरियन। तो 3l माइनस 2j माइनस 4 इज इक्वल टू दी 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज ग्रबलर क्राइटेरियन इक्वेशन for planar mechanism with constant motion। ओके। और इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स सिंपल मैकेनिज्म्स के फाइंड आउट किए कुछ। ओके। मैकेनिज्म की अगर हम यहाँ बात करें कि व्हाट इज मैकेनिज्म, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन is fixed in the
fixed, the kinematic chain is known as mechanism. तो ऐसी kinematic chain को हम mechanism कहते हैं. It may be used for transmitting or transforming motion. ओके, ये ट्रांसमिट करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे. ए मैकेनिज्म विथ 4 लिंक्स इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिसमें 4 बार हों वो सिंपल काइनेमेटिक चेन है, और उसमें अगर हम किसी एक लिंक को फिक्स कर दें तो उससे जो आपकी इक्वेशन मैकेनिज्म बनता है उसे 4 बार मैकेनिज्म कहेंगे, और ये सबसे सिंपल मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म विद मोर 4 लिंक्स इज नोन एज कंपाउंड मैकेनिज्म. अगर 4 से ज़्यादा लिंक्स हैं तो उसके बाद उसे कंपाउंड मैकेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं. When a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, it then becomes a machine. फिर से, when a mechanism is required to transmit power, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, और टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, और उस मैकेनिज्म से अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का वर्क किया जा रहा है या फिर पावर ट्रांसमिट की जा रही है, तो इट देन बिकम्स ए मशीन. तो उससे उस मैकेनिज्म को हम मशीन कहते हैं, या उस कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म को मशीन कहते हैं. इन सच केसेस द वेरियस लिंक्स और एलिमेंट्स have to be designed to withstand the forces safely. A little consideration will show that a mechanism may be regarded as a machine in which each part is reduced to simplest form to transmit the required motion. Okay. सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म में अगर हम डिस्कस करते हैं तो 2 चीज़ों के बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मैकेनिज्म का, कि किस टाइप से मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, और सेकंड किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है मोशन को. तो ट्रांसमिशन ऑफ मोशन आपका लीनियर हो सकता है, या ट्रांसमिट कर सकते हो आप मोशन को रोटरी मोशन. तो या तो रोटेशन से ट्रांसमिट किया जा सकता है या लीनियर से, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो सेकंड पार्ट है जो क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म में, वो कन्वर्ट मोशन. तो किस तरह से, तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकें वो भी मैकेनिज्म है, और एक तरह के मैकेनिज्म जिसमें रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सकें, तो इस कैटेगरी में भी हम मैकेनिज्म्स को रख सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, इसमें कि मैकेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या है, इक्विवेलेंट मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, और इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे कि इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म, व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. अगर किसी मैकेनिज्म में काइनेमेटिक चेन में डिफरेंट लिंक्स को फिक्स किया जाए, जैसे पहले फर्स्ट लिंक को फिक्स किया, फिर मोशन एनालिसिस किया, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म बना. फिर सेकंड में किसी दूसरे लिंक को हमने फिक्स किया, तो उसकी वजह से जो मैकेनिज्म बना हमारा वो सेकंड टाइप का मैकेनिज्म होगा. इसी तरह से डिफरेंट लिंक्स को हम फिक्स कर सकते हैं, और उन्हें फिक्स करके हमें डिफरेंट मैकेनिज्म मिलते हैं. तो ये जो आपका मेथड है, वी कैन ऑब्टेन दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट mechanisms by fixing different links in a kinematic chain is known as inversion of mechanism. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 तरह के आपके काइनेमेटिक चेन्स होते हैं, 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन. तो इन क्रैंक चेन्स मैकेनिज्म काइनेमेटिक चेन्स के लिए डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स का हम लोग स्टडी करेंगे, जो इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म की कैटेगरी में आएगा, है ना.